Good morning, my dear students. Welcome to our SS video class. I hope you all are fine and safe at your home. Okay, as you know, we started our chapter 4. In that chapter 4, first we completed reading, then next explanation, then next we are doing that exercises. With Joe, we completed exercise A and B. I hope you all are doing good at your home. Your studies also going on very well. Listen children, first you have to write hard words in your notebook and that directions you have to draw in your favorite book. Then this जो exercises है पेज नंबर 30 और 31 पे क्विज जो ये एक्सरसाइज आपको अपने टेक्स्ट बुक में ही करना है. ओके, कल हमने हमारा वीडियो क्लास में क्विज जोन का एक्सरसाइज ए एंड बी फिनिश किए. टुडे हम एक्सरसाइज सी एंड राइटिंग जोन और डी को फिनिश करने का कोशिश करेंगे. ओके, बिफोर starting our class means studies, we will do our regular activity. First activity is our first we will write one thought. That thought name is you get what you give. आप जो देते हो वही वापस पाते हो. आप किसी को हेल्प करते हो तो वापस वो लोग भी आपको हेल्प करते हैं. Today's thought of the day is you get what you give. Okay, then our chapter number is chapter number 4, directions. Okay, this is our name of the chapter. And yesterday we completed exercise A and exercise B, and homework is day 1 you have to complete in your fair notebook. Oh sorry, day 1 you have to complete in your worksheet. Okay, I hope you all are doing good. Now come to the today's activity. Activity is today's activity is you have to write seven continents name. क्या करना है आपको? 7 कॉन्टिनेंट्स जो है उनके नेम आपको अपने 6 नंबर नोटबुक में लिखना है. आपको 7 कॉन्टिनेंट्स जो है का नेम आपको अपने 6 नंबर बुक में एक्टिविटी करके लिखना है. एंड टुडेज वर्क इज एक्सरसाइज सी. सी चिल्ड्रन, हमने हमारा थॉट देख लिया और एक्टिविटी में आपको दे दिया है. हमने एक्टिविटी स्टार्ट किया था रिलेटेड कल का जो एक्टिविटी था वो था स्टेट्स का कैपिटल नेम्स लिखना था. आई होप यू ऑल कंप्लीटेड दैट एक्टिविटी एंड टुडेज एक्टिविटी इज राइट 7 कॉन्टिनेंट्स नेम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड this one now. See, exercise C, true or false. Okay, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दिया है. आई एम गोइंग टू रीड नाउ. Exercise C, write true or false against each statement. Means ये जो statement दिया है यहाँ पे जो sentence लिखा हुआ है उसके सामने आपको वो true है या false है आपको वो लिखना है.
Before the invention of the compass, people did not have the idea of direction. Okay, ये क्या है? कंपास जब पहले हमारे पास नहीं था तो तब लोगों को डायरेक्शन के बारे में मालूम नहीं था. यस, वो मालूम नहीं था. कंपास जब इन्वेंट हुआ तो तब हमें मालूम होने लगा. ओ बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे. नाउ सेकंड वन. There are only two directions. How many directions are there? 4 cardinal directions and total intermediate directions, sub directions also there. Okay, then this statement is wrong, means false. Third one, we can use a compass at a night. ओके, हम कंपास को नाइट पे भी यूज कर सकते हैं. राइट, इट इज अ ट्रू आंसर. नाउ कम टू दी 4. टर्न द पेज नंबर 31. पेज नंबर 31. 4. People need to know the directions only in the daytime. Is it correct? No, आप रात को भी आपको डायरेक्शन जानना जरूरी है ना. So this is false statement. एक गलत स्टेटमेंट है. नंबर 4 जो है वो गलत स्टेटमेंट है. नंबर 5. NE is between west and north. No, NE is northeast is between west and north. No, it's a false. Now you do it, you correct it in your textbook. I am going to give you a 2 minutes time. I hope you all completed this exercise and I am going to do the exercise here. I am not going to erase this one. D is find the other directions in relation to the given direction. Okay. सी. हिंट क्या है? फर्स्ट फाइंड आउट द 4 मेन डायरेक्शन. आपको ऑलरेडी नॉर्थ डायरेक्शन दिया गया है तो हमारा डायरेक्शन मैप स्टार्ट होता है यहाँ पे. ओके, नॉर्थ यहाँ पे दिया है तो इसका अपोजिट साइड में कौन सा होगा? साउथ. और इसके इस साइड में ईस्ट. इसमें क्या होता है? सन राइज. सन राइज यहाँ पे. और वेस्ट में सन सेट. फर्स्ट हिंट क्या था? फर्स्ट फाइंड आउट द 4 मेन डायरेक्शन. हमें पहले क्या करना था? वो जो दिया गया है डायरेक्शन वहां पे हमें पहले का मेन 4 डायरेक्शन जो है उसको हमें फाइंड आउट करना था. हमने मेन डायरेक्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. उसके बाद में जो भी है डायरेक्शन हमारे उसको हमें अभी फॉलो करना है. ओके,
चलो बच्चे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ओके, और साउथ और ईस्ट में आता है तो साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ में आता है तो साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट में आना है तो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ओके, दिस यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। आपको 4 मेन डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन एंड ये जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर टोटल? 1 2 3 4 main direction and sub directions for 1 2 3 4 sub main directions are there. Okay, you have to do this exercise in your textbook only. That A B C exercise you have to do in your textbook only. Okay, now do it in your textbook. Okay dear students, I hope you all completed this all. I am going to erase this all and now we will go writing zone. Writing zone means क्या? वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने फेयर नोटबुक में विद अ गुड हैंड राइटिंग आपको लिखना है। कैसे लिखना है? विद अ गुड हैंड राइटिंग 4 लाइन में आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट बनाया है, नॉट नेसेसरी टू डू। आप नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखते जाओगे। ओके, हमारा नेक्स्ट वाला है राइटिंग जोन। ये जो राइटिंग जोन है आपको 4 नंबर नोटबुक में, मीन्स आपका जो फेयर नोटबुक है नंबर 5, उसमें आपका लिखना है। You will complete this exercise in your fair notebook. Okay? Answer the following questions. नीचे दिए गए शब्द प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मीनिंग है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, हाँ, अपने 4 लाइन नोटबुक में कैसे लिखोगे? मैंने आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप 4 लाइन को कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर मार्जिन इन योर नोटबुक, वहां से आपको 4 लाइन है। ओके, ये आपका
4 लाइन नोटबुक है। ओके, आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? GIVT, कैपिटल लेटर टचिंग टू द 3 line and small letter touching to the 2 line. Give the names of 4 directions. DIRECTIONS. ओके, ऐसे आप 4 लाइन नोटबुक को यूज करोगे। आप कैसे लिखते हो? इट्स अ राइट मेथड ऑफ राइटिंग। आपका 4 लाइन ऐसे लिखते हो, आप 4 लाइन को सही से यूज नहीं करते हो। कैसे लिखते हो? ये रॉन्ग मेथड है, लिखने का ये रॉन्ग मेथड है, सही सा मेथड है, करेक्ट मेथड है। कैसे लिखना है आपको? 4 लाइन को कैसे यूज करना है? और हमेशा सभी वर्ड के बीच में फिंगर गैप होना चाहिए। सभी वर्ड के बाद आपके नोटबुक में फिंगर गैप होना चाहिए। दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेक वेरी प्रॉपर्ली। जब हमारे पास चेकिंग के लिए नोटबुक आए तो बच्चे, आपने बहुत सारे लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक भी किए थे और 4 लाइन को सही से यूज भी नहीं किए थे। प्रॉपर्ली आपने 4 लाइन सही से यूज नहीं किए थे। अभी हमारा आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगी। ये हमारा मार्जिन लाइन है। मार्जिन लाइन में आप लिखोगे ANS, आंसर। द फोर सब डायरेक्शन Okay, 4 main directions are, 4 sub directions are northeast, northwest, southeast and southwest. Okay, I hope you all will follow this one. Now answer is okay. 4 sub directions are northeast, southwest, northeast, northwest, southeast and southwest. This is our first answer. Okay, first answer मैंने 4 लाइन ड्रॉप करके लिखा है। आपको भी आपका 4 लाइन बहुत ही अच्छे से
यूज करना चाहिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ टाइम टू यू. आप अच्छे से ये लिखो. Children, can I erase this side? Okay? यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो इरेज करती हूँ. Now I am not going to draw 4 line. Okay, मैं 4 line ड्रॉ नहीं करूँगी. आपको अपने नोटबुक में अच्छे से 4 लाइन में लिखना है. कैसे लिखना है? 4 लाइन को यूज करके आपको अच्छे से हैंडराइटिंग लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. What is a compass? What is a compass? Finger gap. Okay, this is question. Now answer. Compass बोले तो क्या है? What is a compass? Compass का मीनिंग क्या है? It is an instrument used to know the directions. ये जो है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है हमें डायरेक्शंस को पता करने वाला. Always first letter should be capital. It is an instrument. INSTRUMENT instrument used to know the KNOW, know the directions. Okay, write down. Write the question first, then you have to write with a good handwriting using 4 line properly. Finger gap should be there. Okay, then I am going to erase this side. Question is, how can we find the directions with the help of the sun? Sun के हमें sun कैसे हेल्प करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने में, डायरेक्शन ढूंढने में हमें sun कैसे हेल्प करते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. How can we find with the help of the sun? With the help of the sun. Okay, see, हमें सन को यूज करके हम डायरेक्शंस कैसे पता कर सकते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट में राइज होते तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है और उसका जो राइट जो होता है वो नॉर्थ होता है. ऐसे हम डायरेक्शंस को ऐसे यूज करेंगे. Answer I am going to write here. How you have to write answer? With a sharpened pencil.
using 4 line properly, you have to gap between word to word, finger gap. You have to keep your finger there. Whenever you are writing, you have to keep after one word finger, then write. When it will be practice, it will be continued. Okay. The sun rises in the east. The direction we face when we are facing the rising sun is east. Okay, 2 words. TOWARDS, 2 words. Our bag is the west. After full stop, always our sentence continue with the capital letter. हमारा जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है तो उसके बाद में जो भी लेटर लिखते हैं